Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So much awaited IBPS PO notification came yesterday, and it reported 1,167 vacancies. Now, these vacancies are before us. These vacancies will go up finally. But how to succeed in such a low vacancies? So in this video, we will discuss this aspect. Because vacancies reported are 1,167, that means 11,670 candidates will be shortlisted for mains. Now 11,670 across India is very less number. What will be effect of this? The quite obvious effect is the cutoff will be high. Although cutoff is dependent on level of examination and attempt of various candidates, but lower is the vacancies, higher is the cutoff. That is true. At the RBI notification for assistant, I told you that the cutoff will be more than 90. Many people were not accepting that, but when result came, most of the circles except Mumbai, cutoff was above 90. So similarly, if we look at IBPS PO notification, where all existing clerks will participate, they may be working in SBI or in other banks, along with the candidates, those are already appearing for such examination for many years, along with some freshers. Naturally, competition is tough. So what should be our strategy that despite low vacancies, I should get the job of PO in bank? A systematic preparation can lead you to success. Although the number of vacancies that is low will make the competition tough, but the silver lining is if you clear the prelims, your chances of getting the job is high, because ultimately vacancies will ramp up and the ratio of selection in main and interview will come down. Because in main they may shortlist 4 times the number of vacancies available at that time. If some banks have added the vacancies, they will call more people for interview. So that means the biggest hurdle is to clear the prelim examination. If you are able to clear the prelim examination and come amongst 11,670 candidates, your chances of final selection or going to the interview stage are very, very high. What should be done to clear this examination? I am already posting videos on alternate days how you should prepare for IBPS PO. You should follow these tips. 3 deadly weapons I have suggested in that. One deadly weapon is use of good mock test. I have given the link of mock test in description as well as comment column. Subscribe this mock test today itself. Take annual plan. It will help you. Thousands of our candidates got success by using the mock test, because this mock test will help you to identify your weak areas and you will have a focused study. Second important thing is current affairs. For current affairs, I have given you a very good source. Link of that PDF is available in description. Subscribe it and use it. Third important thing is banking awareness knowledge. For that, I have given you a video link of 196 videos. Watch 5 to 10 videos daily from today itself to get good marks in main examination. But in prelim, GK may not come, but you have to prepare from day one, because the moment you clear the prelim, there will be very little time between your prelim examination and main examination. You will not be able to cover general awareness later on. So we have to plan for mains from day one. Now along with this, there may be queries in some of the candidates how to improve English, how to improve quant,
how to improve performance in reasoning. For that, I have provided you a playlist, Right Way of Preparation. Watch these videos, plan your study. We will be focusing on IBPS PO thick and thin in coming days. So, all the best. Don't get discouraged. Don't waste your time on discussion. What should be level of vacancy? Had these been these vacancies, this will happen. These are all time wasting things. Whatever is in front of us, we have to plan according to them and we have to execute according to that. The hard reality is the number of vacancies will go down year after year. There will be hardly any vacancies from 2023 onwards. This I told you well in advance. So this is, if you want to join banking, these 3 years are only available to you to come to banking. And if you are getting eligible in 2023 or thereafter, it is better you focus on other sectors from right now. Purpose of telling all this truth is so that you are aware about the truth and you work according to that. Yesterday I posted a video, what is the expected level of vacancy after increase. Some people may believe it, others may disbelieve it. It is their choice. But whatever I am telling you is based on certain calculations. So it is up to you either to believe that figure or not. But I have given you the position that is likely to emerge. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। कल मच अवेटेड IBPS PO का नोटिफिकेशन आ गया और सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर एक चीज को लेके कुछ लोगों में चिंता हुई कि वैकेंसीज बहुत कम है। मैंने पहले से ही आपको बताया था कि आने वाले सालों में हर वर्ष वैकेंसी गिरती चली जाएंगी। इस वर्ष जो ये वैकेंसीज हैं 1167, अभी ये पूरी नहीं है, इसमें काफ़ी वैकेंसीज ऐड होंगी जो मैंने कल आपको वीडियो के जरिए भी बताया है। काफ़ी लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने जो आंकड़ा दिया है किसी कैलकुलेशन के बेस पे दिया है, आपको अच्छा लगता है अपनाइए, नहीं लगता कोई बात नहीं है। पर हाँ, हमें तैयारी किसके बेसिस पे करनी है, जो आंकड़ा मैंने उस वीडियो में बताया उसके हिसाब से या जो आंकड़ा IBPS PO के नोटिफिकेशन में है। ऑब्वियस है जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो आंकड़ा आज के नोटिफिकेशन में है उसके आधार पर ही होगा। दैट मीन्स अगर 1167 वैकेंसीज हैं तो 11,670 लोग प्रीम के लिए से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेन के लिए। मगर क्योंकि वैकेंसीज बढ़ जाएंगी तो जो लोग प्रीम क्लियर कर लेंगे उनको मेन क्लियर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि मेन के अंदर वो उतने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो तब तक वैकेंसीज हो जाएंगी उसके 3 से 4 गुना कैंडिडेट। तो ये भी संभावना हो सकती है कि जो लोग प्रीम क्लियर कर जाएं उसमें से 60, 70, 80% लोग मेन क्लियर कर जाएं, अनलाइक पास्ट में जहां वो लगभग आधे से कम लोग ही मेन पास कर पाते थे। तो इस बार अगर आप प्रीम पास कर लेते हैं तो आपको जॉब लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि आप उन लोगों के अंदर आ जाएंगे जो अब बहुत नजदीक है सक्सेस के। तो असली मेहनत है प्रीम क्लियर करने की। अब ये कैसे क्लियर करें, क्या रास्ता अपनाएं, इस पे हम चर्चा करेंगे। कुछ लोग और बातों पे चर्चा कर रहे हैं, हम उस पर वक्त जाया नहीं करेंगे, क्योंकि जो सामने है उसी के अनुसार अगर हम अपनी एक्टिविटीज करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं। टाइम बहुत कम है। मैं अल्टरनेट डे में आपको IBPS PO की तैयारी कैसे करें इसके वीडियोस डाल रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए और उस रास्ते पे आप चलिए। अब क्योंकि हमें 11,670 लोगों में आना है तो इसका अर्थ क्या है, कट ऑफ हाई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वैकेंसीज कम होती हैं कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और जब वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, क्योंकि कट ऑफ कोई प्री डिटर्मिन नहीं होता। कट ऑफ है कि 11,670वें कैंडिडेट का अंक क्या है, वहां पर कट ऑफ लग जाएगा। उससे ऊपर जिनके नंबर हैं वो मेन के लिए बुला लिए जाएंगे, जिनके नंबर उनसे कम है वो आउट हो जाएंगे। तो हमें 11,670 कैंडिडेट की लिस्ट में आना है। उसके लिए मुझे क्या करना है,
जब आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था असिस्टेंट का, मैंने बताया था कि 90 से अधिक कट ऑफ जाएगी। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर कहा नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। जब रिजल्ट आया तो सिर्फ बॉम्बे को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में 90 से ऊपर कट ऑफ आई, क्योंकि वैकेंसी 700 कुछ थी। अब यहाँ 1100 वैकेंसीज हैं। इसके अंदर एग्जिस्टिंग क्लर्क जो स्टेट बैंक के हैं या बैंकों के हैं वो भी बैठेंगे, जो कई सालों से कैंडिडेट बैठ रहे हैं वो भी बैठेंगे, और कुछ नए कैंडिडेट भी बैठेंगे। तो कंपटीशन बहुत टफ है, इसलिए कट ऑफ भी बहुत हाई होगा। कट ऑफ कितना होगा आज की डेट में कहना मुश्किल है, पर पिछले कट ऑफ से काफ़ी अधिक होगा। मीन्स अगर जो भी पिछला कट ऑफ है उससे 14-15 नंबर ऊपर हो सकता है, 1-2 नंबर का गैप नहीं होगा। कट ऑफ में कम से कम 14-15 नंबर का गैप हो सकता है, और क्योंकि इतना गैप हो सकता है तो हमें बहुत सिस्टमेटिक वे से तैयारी करनी है। इसके लिए 3 डेडली वेपन मैंने आपको सजेस्ट किए हुए हैं। पहला है अच्छा मॉक टेस्ट, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट में भी दिया है। अधिकांश लोगों ने ये मॉक टेस्ट सब्सक्राइब कर लिया है, डे बाय डे उनमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट है, ये आपको इस एग्ज़ाम को पार करने में बहुत अधिक मदद करने वाला है। दूसरा है करंट अफेयर की तैयारी, उसके लिए एक अच्छा PDF आपके पास होना चाहिए। वो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी चीज़ है बैंकिंग की नॉलेज, उसके लिए 196 वीडियोस की प्ले लिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इस तरह की वीडियोस कई बार 1000-2000 रुपये की भी बाजार में मिलती है, आपको इस चैनल पे फ्री है। उसको आप देखिए, अपनी नॉलेज इंप्रूव कीजिए। फिर इंग्लिश में मैं कैसे इंप्रूव करूं, क्वांट में मैं कैसे इंप्रूव करूं, रीजनिंग में मैं कैसे इंप्रूव करूं, इन सब पर जो वीडियोस हैं राइट वे ऑफ प्रिपरेशन की प्ले लिस्ट के अंदर मैंने आपको दी है, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इन वीडियोस को देखिए। बिल्कुल भी आप वक्त जाया मत करो कि इतनी वैकेंसीज आ गई, ये होता वो होता। एनालिसिस का टाइम नहीं है, टाइम है टाइम टेबल बनाइए, पढ़ाई में जुट जाइए। 1167 लोगों के टारगेट को लेके 11670 की लिस्ट में हमें आना है। फिर हम मेन में बैठेंगे, फिर वो इंटरव्यू में जाएंगे, और लगभग 3500 से 4000 अगर अल्टीमेट वैकेंसीज हो जाती हैं तो आप देखिए प्रीम और उसमें कितना बेहतरीन रेशो आपके लिए हो जाएगा। जो सामने है, जो सच्चाई है, उसका हमें सामना करना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ अब 3 साल आपकी ये सिलेक्शन होनी है, 2020, 2021, 2022 में। 2023 के बाद नेग्लिजेबल वैकेंसीज होंगी, इसलिए जो लोग 2023 के बाद एलिजिबल हो रहे हैं उनको किसी और क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए। बैंकिंग के अंदर वैकेंसीज गिरती जाएंगी, ये एक कड़वा सच है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब रिटायरमेंट कम है तो रिप्लेसमेंट भी कम होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।